Hello class. In this video I will teach you protocol used in internet. Protocol used in internet. Okay. There are many types of protocol that are used in internet. These are HTTP, HTTPS, TCP/IP, FTP, okay, and IP or etc. These are used in internet. These protocol are used in internet. First is HTTP. HTTP, that means Hypertext Transfer Protocol. In earlier video I will explain you what is the HTTP, but in this video I will explain you briefly what is the use of HTTP, that means Hypertext Transfer Protocol. You know, HTTP, that means Hypertext Transfer Protocol. Okay. HTTP is a communication protocol. Used by the client machine to send the request to the web server for a web page and its server, and it has to transfer the requested pages on the client machine. It is generally used a combination with www to access the hypertext document. That means when you use a web browser on the client machine which interact with the remote machine called web server using HTTP by sending HTTP request, and the web server delivers the request resource to the client in the form of HTTP response. Okay, clear ये चीज़? That means मैंने आपको बताया था ये चीज़. That is a client computer, that is a server computer, and client computer open a browser application, that means web browser. In a web browser you write the URL in the address bar, for example www.google.com. that means it gives the request to the server computer. It gives the request to the server computer, and server gives the response according to the request. But this message is delivered to the server through the HTTP. That means Hypertext Transfer Protocol. HTTP define how messages are formatted and transmitted, and what action web server and web browser should take in response to various commands. That means when you give a request to the client, to the server computer, and server computer give the response according to the request message that is handled by the HTTP protocol. It forward the message, that means it formatted the message and translate the message translate the request. Okay, then it send to the server computer, and server computer when give the response, then it translate the message to the client computer. So it delivered the request, it delivered the response from the server computer through the HTTP protocol. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करता है. दैट मीन्स आपके रिक्वेस्ट को सर्वर के पास ट्रांसफ़र कर रहा है. ये ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है हमारे डेटा को और डिलीवर कर रहा है क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स को. ठीक है, तो ये जो डिलीवर्ड करने का और ट्रांसमिट करने का वर्क होता है वो किस प्रोटोकॉल का काम होता है? HTTP ही हमारे मैसेज को फॉर्मेट करता है और ट्रांसमिट करता है सर्वर कंप्यूटर तक या क्लाइंट कंप्यूटर तक. ठीक है, तो ये जो वर्क होता है क्लाइंट से सर्वर के पास और सर्वर से क्लाइंट के पास
डेटा का या वेब पेज का या वेबसाइट का आना, डिलीवर करना मैसेज रिक्वेस्ट का, ठीक है, वो हमारा किसके थ्रू होता है, HTTP रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे HTTP अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो आपका ये डेटा डिलीवर नहीं होगा सर्वर तक, और सर्वर से रिस्पॉन्स डिलीवर नहीं होगा क्लाइंट तक। तो HTTP ही का एक मेन रोल होता है हमारी रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट करना और हमारे रिस्पॉन्स को डिलीवर करना क्लाइंट तक, ठीक है। तो दैट इज़ द HTTP प्रोटोकॉल। कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारी सिक्योर साइट होती है, जैसे आपकी गूगल की भी सिक्योर, अगर आप किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर उसमें HTTP लिखा है तो वो आपका सिक्योर नहीं है, नॉन सिक्योर है। लेकिन HTTPS अगर उस साइड में लिखा है, दैट मीन्स ये आपको डेटा ट्रांसमिट करेगा और डेटा डिलीवर करेगा विद सिक्योरिटी, दैट इज़ अ सिक्योरिटी। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, दैट मीन्स विद सिक्योरिटी डिलीवर द या ट्रांसमिट द मैसेज एंड फॉर्मेट द मैसेज, ओके। तो विद सिक्योरिटी जब बात आ जाए, वही काम है इसका भी काम, आपका डेटा को, दैट मीन्स मैसेज को फॉर्मेट करना और डिलीवर करना, ट्रांसमिट करना और डिलीवर करने का काम आपका HTTP प्रोटोकॉल का है। लेकिन यहाँ पर जब HTTP यूज़ हो रहा है तो ये विदाउट सिक्योरिटी है, लेकिन जब हम HTTPS का यूज़ करते हैं तो ये विद सिक्योरिटी हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। जब भी हम पेटीएम की साइट खोलें या गूगल पे की खोलें, गूगल पे की खोलें, या फिर किसी भी बैंक की, या फिर आप कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट खोलो, ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन रिजर्वेशन की, गूगल की भी साइट आप आएगी, सभी में HTTPS ही लिखा रहता है। अगर HTTP आप जब भी कोई भी अगर किसी तरीके का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो साइट में आप देख लीजिए कि उसके पहले HTTPS है कि नहीं है। अगर HTTPS है, दैट मीन्स आपकी विद सिक्योरिटी आपकी साइट ओपन हो रही है, आपका डेटा सिक्योर है, ठीक है। और अगर HTTP है, दैट मीन्स आपका डेटा सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो 100% सिक्योरिटी नहीं कह सकते हो, लेकिन तब भी आपकी 95-99% तक आपकी सिक्योरिटी रहती है, ओके। दैट इज़ अ HTTP and HTTPS protocol. Next is a TCP/IP. TCP/IP, that means it is a open protocol, which means it's not tied to any particular hardware or software company. That means आपको बताते हैं what is a TCP/IP. Next है आपका TCP/IP. TCP मतलब होता है TCP, दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP दैट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। अब TCP/IP, TCP पहले देखते हैं। TCP देखो, TCP क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसैम्बलिंग and received packet to the destination computer to the original information. That means आपका ये क्लाइंट कंप्यूटर है, ये सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। जब क्लाइंट कंप्यूटर के पास से डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो डेटा जब ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, जब आप अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करते हो, ठीक है, तो इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इस जॉब का वर्क क्या होता है, इसका जॉब क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एक इक्वल साइज़ के पैकेट में, ठीक है। इक्वल साइज के पैकेट में, जैसे आपका डेटा है लंबा सा, आपका मान लिया कि आपका डेटा जो है वो आपका 140 MB का है, ठीक है। 140 MB का डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक। तो ये क्या करेगा, आपके इस डेटा को एक छोटे छोटे से पैकेट में ट्रांसफ़र करेगा, छोटे छोटे से एक पैकेट का, इक्वल साइज़ का एक पैकेट बना लेता है। तो जो इक्वल साइज़ के पैकेट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TCP/IP की। और ये TCP/IP ही इस पैकेट को भी, इक्वल साइज़ के पैकेट को भी कन्वर्ट करता है, मतलब कि पैकेट बनाता है। और उसके साथ साथ इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कि ये पैकेट को रिजेंबल करता है। दैट मीन्स कि जैसे आपका क्लाइंट से जब डेटा जा रहा है सर्वर के पास,
तो ये क्लाइंट से जब डेटा सर्वर के पास जा रहा है तब ये पैकेट को ही अरेंज कर रहा है, बना रहा है, और जब वो वहाँ पर पहुँच गया तो उसको रिसीव करते टाइम ये फिर से उस पैकेट को रिसेंबल कर देगा उसके प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। तो इस पैकेट को इस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करना एक इक्वल साइज में, और फिर उसको दोबारा रिजेंबल करने का, दोनों का काम किसका होता है, आपका TCP/IP का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए, अगर आपको कोई एक बहुत बड़ी चीज़ दी गई है कि इसको आपको ये चीज़ वहाँ तक पहुँचानी है, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप क्या करोगे, उसको उसकी एक पैकिंग करोगे, पैकिंग करके पैकिंग के फॉर्म में उसको वहाँ तक पहुँचाओगे। तो पैकिंग करने के टाइम पर हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स उसकी पैकिंग कर देंगे। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो घूमने जाने के बाद आप अपना सूटकेस तैयार करते हैं, ब्रीफकेस तैयार करते हो, तो इसमें सारे जो जितने भी कपड़े रखते हैं तो उस कपड़े को क्या करते हो, आप तह करके उस कपड़ों को रखते हो, ठीक है। दैट मीन्स आपने पैकेट को क्या किया, आपने उस इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को क्या किया है कि उस तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए आपने उसको पहले अरेंज किया है, छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, उसको रख लिया। फिर जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा देन आपने फिर से उसको रिजेंबल कर दिया, फिर से उसको हटा दिया। जब हम मकान शिफ्ट करते हैं, अगर कहीं घर लेते हैं, किराए पर रह रहे हैं, कहीं पर फिर शिफ्टिंग करते हैं, किसी एक मकान को छोड़ के दूसरे मकान में जाते हैं, तो हमारे जितने भी घर के सामान हैं वो सभी तो लेकर ही जाएंगे उस जगह। तो सभी को क्या करते हो, पैक करते हो, पैक करके फिर उसको एक कम्पैक्ट फॉर्म में रखते हो जिससे वो वहाँ तक ईजिली ट्रांसमिट हो जाए। और फिर जब वहाँ पर पहुँच जाते हो तो फिर उसको फैला देते हो, फिर से वो सारा वैसे ही अपनी अपनी जगह पर जिस हिसाब से आपको अरेंज करना है उस हिसाब से उसको अरेंज कर देते हो। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्क यही है। ये क्लाइंट से जब सर्वर के पास जाता है तो उसको वो इक्वल साइज़ के छोटे पैकेट में ट्रांसमिट करता है, कन्वर्ट करने के बाद फिर जब वो सर्वर तक पहुंच जाता है तो फिर से उसको रिजेंबल करने का वर्क भी आपका TCP/IP का ही होता है, ठीक है। फिर TCP का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP मैंने आप लोगों को कल बताया था कि IP क्या है, जो आपका वाला प्रोटोकॉल था उसमें बताया था कि IP क्या है। IP इज यूज टू असाइन द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर। दैट मीन्स कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अगर इंटरनेट से अटैच है, दैट मीन्स अगर वो किसी न किसी नेटवर्क से अटैच है, तो हर एक नेटवर्क से जो भी कंप्यूटर अटैच होते हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका क्या कहलाता है, IP एड्रेस, ठीक है, वो IP एड्रेस कहलाता है। और इस IP एड्रेस को जो हमने नंबर असाइन किया है, ठीक है, वो उस जैसे आपका TCP/IP का वर्क क्या हो गया, आपको डेटा को पैकेट में ट्रांसफ़र करना, कन्वर्ट करना, और उसी के साथ IP लगा हुआ है। TCP/IP हम एक साथ क्यों लेते हैं, देखिए TCP का वर्क क्या हो गया कि आपके डेटा को वो पहले कन्वर्ट करेगा, बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में, एक इक्वल साइज़ के पैकेट में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद उसको वहाँ तक पहुँचाएगा। तो पहुँचाने के लिए IP एड्रेस, दैट मीन्स आपको जहाँ पर पहुँचाना उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए ना। तो IP एड्रेस क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है IP प्रोटोकॉल, दैट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके आगे एड्रेस नहीं लिखा। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमने उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का, जो डेस्टिनेशन आपका कंप्यूटर है उस तक पहुँचाने के लिए जो भी हमारा उस कंप्यूटर का एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस को मतलब कि उसका जो रूट डिफाइन करेगा, उस नेटवर्क के थ्रू जब जाएगा तो उसका जो रूट डिफाइन करने का काम होता है वो होता है IP का। TCP/IP का वर्क होता है बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करना, और IP का काम होता है उस एड्रेस तक डेटा को पहुंचाने का। दैट मीन्स जो हमने डेटा IP एड्रेस असाइन किया है उसको enroute them over the network to their destination. Okay, that is the TCP/IP. Okay, next topic is FTP. FTP that means फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP आपका क्या है, फाइल ट्रांसफ़र। देखिए HTTP हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
HTTPS हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दैट मीन्स विद सिक्योरिटी। फिर आपका नेक्स्ट आता है TCP/IP, TCP/IP भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद है आपका FTP, FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इस नाम से ही पता चल रहा होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट मीन्स ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। देखिए सभी का, जैसे हमने प्रोटोकॉल को बताया था, प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। देखिए सभी का एक रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ही हम हर एक काम को करते हैं। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन कोई काम नहीं होता है। आपके स्कूल के आने का भी एक टाइम है, आपके स्कूल से जाने का भी एक टाइम है, आपकी जो क्लासेस चलती हैं उसका भी एक टाइम टेबल फिक्स है, उस जो आपको उस क्लास में पढ़ना है उसका भी, सिलेबस का भी एक टाइम टेबल, दैट मीन्स सिलेबस भी एक तरीके से आपका एक प्रोटोकॉल है। तो सभी चीज़ का अलग अलग प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्कूल चलने का प्रोटोकॉल अलग है, स्कूल में क्लास जो वर्क करती है, हर एक सेक्शन और हर एक क्लास का जो सेक्शन है उस क्लास में कौन से सब्जेक्ट का पीरियड चलेगा उसका एक अलग टाइम टेबल हो। उसी तरीके से इंटरनेट में भी जब हम वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करते टाइम हमारा कौन सा प्रोटोकॉल होगा, वो आपका HTTP प्रोटोकॉल है। विद सिक्योरिटी अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके लिए HTTPS प्रोटोकॉल है। डेटा जब ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होगा उसके लिए आपका ट्रांसमिशन TCP/IP प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, कि कोई बड़ी फाइल ट्रांसफ़र हो रही है दैट, तो उसके लिए आपका एक अलग प्रोटोकॉल है, दैट इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब FTP का वर्क क्या है, इंटरनेट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है, यूजिंग अ FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक। और ये हमारा वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत सिंपल है, वही हम जो अभी तक बताते आ रहे हैं, दैट इज़ अ क्लाइंट, दैट इज़ अ सर्वर, ठीक है। अगर आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो आपका ये FTP क्लाइंट हो गया और ये FTP सर्वर हो गया। जिस जहाँ से आपने फाइल को दिया और जहाँ से फाइल पहुँची तो वो जहाँ से गई है वो FTP क्लाइंट हो, जहाँ पर पहुँची है डेस्टिनेशन जो है वो FTP सर्वर कंप्यूटर। दैट मीन्स कि आपने यहाँ से फाइल अपलोड करी है, ठीक है। जब यहाँ से फाइल आपने इस पर भेजी है तो दैट इज़ अ अपलोडिंग। जब वहाँ पर रिसीव हुई है दैट इज़ अ डाउनलोडिंग। अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, अभी हम अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग बताएंगे। कॉपिंग द फाइल फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, दैट इज़ अ डाउनलोडिंग। और कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम द योर कंप्यूटर टू ए सर्वर कंप्यूटर, दैट इज़ अ अपलोडिंग, ठीक है। दैट मीन्स आप ऐसे समझ लो, ये क्लाइंट है, नहीं ये सर्वर है, दैट इज़ अ सर्वर और दैट इज़ अ क्लाइंट। जब सर्वर से क्लाइंट में आ रहा है, जब सर्वर से दैट मीन्स ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो ये क्या हो गया, डाउनलोडिंग। जब सर्वर से आप कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में लोड करते हो तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग। और जब क्लाइंट से सर्वर में लोड होता है, क्लाइंट से सर्वर में, तो ये होता है अपलोडिंग। जब फेसबुक पे आप अपनी फ़ोटो को लोड करते हो फेसबुक सर्वर पर तो वो आपका अपलोडिंग हो रही है। कहाँ पर अपलोडिंग हो रही है, फेसबुक सर्वर पर। लेकिन जब आप वहाँ से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पे लोड करते हो तो आप क्या मेन सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर में डेटा को ला रहे हो, तो दैट इज़ अ डाउनलोडिंग। इसी वजह से कॉपिंग द फाइल फ्रॉम सर्वर टू योर कंप्यूटर, दैट इज़ अ डाउनलोडिंग। और कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, दैट इज़ अ अपलोडिंग। ओके, इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा आता है FTP। FTP हमने बताया कि FTP आपका किस लिए यूज़ हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ हो रहा है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए वही है कि आप जब डेटा फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे तब आप क्या यूज़ करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। The facility works on the client server model, whereas file are transferred between FTP client to FTP server. The process of transferring from file from FTP client to FTP server is called uploading, where the transfer files from server to client machine, that is the downloading. Okay.
The transfer of files between the system depend on the permission set by the server. That means कि आपकी कैसी परमिशन देता है, किस हिसाब से. कभी कभी क्या होता है कि वो अलाउ करता है, कभी कभी वो सिक्योरिटी मांगता है, कभी कभी वो पासवर्ड मांगता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, कभी नहीं मांगता है. तो ये आपकी डिपेंड करता है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करते टाइम आप कौन सी परमिशन का यूज़ कर रहे हो. तो परमिशन के अकॉर्डिंग अगर आप आ जाए तो FTP सर्वर जो होता है वो 2 टाइप से आपके फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है. एक है, फर्स्ट है आपका एनोमस FTP सर्वर, एनोमस FTP सर्वर, और दूसरा है आपका नॉन एनोमस FTP सर्वर. इसमें क्या होता है, इसमें FTP सर्वर में अगर आप एनोनिमस FTP सर्वर का यूज़ कर रहे हो तो अलाउ द यूज़र टू डाउनलोड द फाइल ऑन द क्लाइंट मशीन विदाउट क्रिएटिंग एनी अकाउंट. ठीक है, यूज़र कैन लॉग इनटू दिस सर्वर एज अ गेस्ट यूज़र विथ यूज़र नेम एंड अ पासवर्ड, दैट मीन्स ईमेल एड्रेस. देन यू कैन डाउनलोड द फाइल. बट इन द नॉन एनोनिमस FTP सर्वर, without creating user ID and without giving any password, you transfer the file to the web FTP server. That means आपका एनोनिमस में क्या यूज़ हो रहा है, आपके इसमें अगर आप जैसे क्लाइंट से अगर सर्वर के पास जा रही है फाइल, तो इसमें जब फाइल ट्रांसफ़र होगी तो उसके लिए पूछेगा इसका ID और पासवर्ड. ठीक है, जब ID और विद सिक्योरिटी, ID और पासवर्ड दैट मीन्स विद सिक्योरिटी है, तब वो आपका कहलाएगा एनोनिमस FTP सर्वर. और जब विदाउट ID और पासवर्ड की आपकी फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो कहलाएगा नॉन एनोनिमस का FTP सर्वर. ओके क्लास, थैंक यू.